Today, myself, Rinku Yadav, going to teach you the political science, chapter number 3, political parties. In the last lecture also, we have learned about this political parties half part. That was the introduction of the political parties and then the characteristics of political parties. After that, we have learned about the changing nature of political party system in India, and we have learned about the three types of parties, that was one party system, two party system, and the multi party system. And we have started, there are national parties, there are 7 types of national parties. We have learned first one, Indian National Congress, and second, Communist Party of India. Today we are going to learn now the third one, that is Bharatiya Janata Party. So this party comes, Bharatiya Janata Party is very important party at the national level. Earlier it was Bharatiya Jan Sangh, was established in 1951. This party was merged with Janata Party. That means this Bharatiya Jan Sangh was formed in 1951 and it get merged with Janata Party in 1977. The Janata Party could not survive. That means वो ज़्यादा दिन चला नहीं. Janata Party did not survive, and there was a split in the party, and then it created Bharatiya Jan Sangh. तो उसके बाद क्या हुआ, जनता पार्टी जब ज़्यादा दिन चल नहीं पाया तो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ जो था वो बन गया कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्मॉल पार्टी, मतलब वो दोनों पार्टी को ज्वाइन करके बना है भारतीय जनता पार्टी. दैट इज इन 1980 में एस्टैब्लिश हुआ था, दोनों को मिला के बनाया गया था. ओके, ये पार्टी का एम गोल क्या था? द पॉलिसी टू प्रिजर्व इंडियन कल्चर एंड द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. The party have an ideology and a thinking that we have to protect this our India's culture and tradition. So this party gives importance to economic reform. That means to get economically fully developed. Now we are going to learn about the Communist Party of India, that is Marxist. Students, I have already told you. Lastly, we have learned after Indian National Congress, we have learned about the Communist Party of India. Same it is written. Now Communist Party of India, that was Marxist. Marxist में Karl Marx के जो followers थे, Karl Marx जो thinking रखते थे, उस हिसाब से ये पार्टी बनी है. और ये पार्टी का गोल क्या था, इनका एम क्या था कि हमें क्या करना है. So he believes, this party proclaims what? Socialism, secularism and democracy. Socialism means जितने भी wealth कमाते हैं country, it should be distributed equally to rich and poor countries. Okay, and secularism means होता है कि हमें religion को equally treat करना है. तो ये पार्टी, इस पार्टी को इनका गोल है कि ये सब चीजों को वो फॉलो करे और कंट्री में ये सारी चीजें दे. वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लैंडलेस लेबरर्स, वर्कर्स एंड फार्मर्स. दैट मीन्स ये पार्टी सबसे ज्यादा किसको हेल्प आउट करता है? लेबर्स को, जो हमारे मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, पीसेंट्स हैं, फार्मर्स को, ये सबको वो ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं दिस पार्टी. बिकॉज कार्ल मार्क्स भी यही चाहते थे कि हमें लेबर्स को हमेशा हेल्प आउट करना है. दे शुड गेट ईच and every facility. So this party has been formed. Okay, and opposed imperialism. Imperialism का meaning होता है other country coming to our country and making the colonies and dominating them. जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे और इंडिया के अंदर आकर अलग अलग जगह पर कॉलोनी सेटअप किया और हमारे हर चीज के ऊपर उन्होंने हुकूमत किया. That is called imperialism. So we should always oppose imperialism. So Communist Party oppose करता है imperialism को. Okay. Next one, the Bahujan Samaj Party, that is BSP. BSP, that is Bahujan Samaj Party. You can see the logo, the symbol, the elephant symbol is there. So Bahujan Samaj Party crosses the socialist ideology. In 1984, the party was established.
So this BSP party has been established in the year 1984. What was the main objective? इनका main motive क्या था? To help protecting the minority. The minority people should be helped from this बहुजन समाज पार्टी. And minorities में कौन से peoples को वो ज़्यादा help करते हैं? You know very well. SC, that means scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities. Religious minorities means like our Muslims and Christians are called as minorities, and other backward classes together constitute a majority. And you can see that BSP parties are always helping to all the minority groups, minorities people. Okay, तो ये पार्टी इन समाज के लिए इनका मोटिव ये था कि वो SC, ST और माइनॉरिटीज पीपल को ऊपर लाएं और उन्हें हर तरह का फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. तो ये पार्टी उन्हें हेल्प करती है. उनका मेन गोल यही था. यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो हाउ दे आर हेल्पिंग. प्रोसेस सोशलिस्ट फिलोसफी, सेम थिंग. दे आर वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ, उन्हीं की सेवा के लिए ये पार्टी बना हुआ है. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लास. नेक्स्ट पार्टी इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ये कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा हुआ था, बाद में जाके वो स्प्लिट हो गया. सो यू कैन सी देयर इन दिस पिक्चर, in 1999 there was a split in the Congress party and the Nationalist Congress party. तो इन दोनों में स्प्लिट हो गया था, मतलब दोनों अलग हो चुके थे ये दोनों पार्टीज में, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में. द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यूज. इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव क्या था कि उनका मेन ये मोटिव था, द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म. सेम हर पार्टी का यही गोल होता है मोस्ट प्रोबेबली, कि वो अपने कंट्रीज में हर कॉमन पीपल को इक्वली ट्रीट करें, हर रिलीजन को एक समान देखे. यही उनका गोल था. सो यू कैन सी दैट this party believes in the values of democracy, equality and secularism. The party was in power in Maharashtra from 1999 to 2014 in coalition with the Congress party. ये जो पार्टी थी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये किसके साथ को-रिलेटेड थी? ये स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट पार्टीज के साथ भी जुड़ी हुई थी. जैसे आप देख सकते हो महाराष्ट्र के साथ वो पार्टी जुड़ी हुई थी 1999 से लेकर 2014. दैट मीन्स 15 years दे वर कोलिएशन था उनके बीच में. ओके, और ये Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by Congress at center from 2014 to 2014. So you can see that NCP, that means National Congress Party, कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़ी थी. अब आप बोलोगे why teacher is telling like this? Maharashtra is a state party, right? And Indian National Congress Party is a national party. That means ये जो पार्टी था NCP, that was दोनों के साथ था, स्टेट पार्टीज के साथ भी हेल्प कर रहा था. कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब मिलकर काम कर रहे थे, और नेशनल पार्टीज के साथ भी मिलकर काम किया है. तो आप देख सकते हो कि इन्होंने बताया है कि एनसीपी पार्टी वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने कितने साल वर्कआउट किया है. दैट इज 2004 to 2014 तक. एट दैट टाइम शरद पवार वाज देयर एन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अंडर मनमोहन सिंह के अंदर में थे. So you can see that this party was there helping to the state party also, as well as the national party also. Okay, I hope you understand this part. Next one, the next one is Trinamool Congress. So Trinamool Congress, ये पार्टी जो है ये बंगाल की पार्टी है, और ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1998 में. Okay, so Trinamool Congress Party was established in 1998, and Election Commission gave the party recognition as National Party in 2016. So उनको ये authority कब मिली? 2016 में ये authority मिल गया था, Election Commission ने दिया था. And the party supports, इनका भी एक agenda था, the ideology, the thinking was there, is this party also have
that was democracy, secularism, protection of interest, and the weaker section of the society. The same goal. Trinamool party is also helping that democracy के लिए वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं. Secularism, you know very well what secularism. I've already told you. All the religions should be equally treated. The same goal for every parties are there, and Trinamool Congress also saying that the religions, every religion should be given a equal rights. Okay. एंड वो सबसे ज्यादा उस पर भी कर रहे हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बहुत ज्यादा वीक है, पुअर है, और वीकर मीन्स ऑल माइनॉरिटीज बेस में, उनको भी वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं उनके रिलीजन्स में और उनके कल्चर्स को पूरे डेवलप करने के लिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज सेवन नेशनल पार्टीज वी हैव गो थ्रू ऑलरेडी. जैसे फर्स्ट वाला आपको याद होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकेंड वन वॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज भारतीय जनता पार्टी, fourth one is Communist Party of India, that is Marxist, fifth one is Bahujan Samaj Party, and then sixth is Nationalist Communist Party, which has been split by Indian National Congress, and the last one was Trinamool Congress, that was in Bengal. So these are the 7 national parties. ये हमारे 7 national parties हैं जो आपको याद रखना है. Okay, so we'll continue. Next one, आप यहाँ पे देख सकते हो, there is a table, number of seats secured by the national parties in Lok Sabha elections. So Lok Sabha elections which was held in 2009 and 2014. Let's see which party got how many seats in 2009 or in the year 2014. Indian National Congress got 206 seats in the Lok Sabha elections, and 2014 it get reduced to 44. Now Communist Party of India, you can see in 2009 4 seats, and in 2014 it was 1 seat. Bharatiya Janata Party, the number of seats got 116, and in 2014 he got 282 seats. That means it has been increased. And you know very well, students, now we are having a ruling party, that is Bharatiya Janata Party. Okay, it is increasing only. Next one, Communist Party of India, Marxist, getting number of seats in 2009, that is 16, and 2014 it is getting 9. Bahujan Samaj Party getting in the year number of seats 21. In 2014 it is nil. Nationalist Congress Party getting number of seats in Lok Sabha elections, that is 9, and 2014 it is getting 6. So you can see the table and you can identify in which year the parties are getting more votes and in which year it is not getting votes. Okay. Next one, we'll continue with the next point. Now you can see there are lots of papers in this. So students, while reading all these items, all these news items in the newspapers, you can understand there are different parties and different newspapers we have. Okay. In that, very different topics are also there regarding all political parties. Next one. Now you can see there. Now we are going to learn about, in India, we have a different people speaking with different languages, traditions, culture. So it is different tradition and culture. So they belong from different parts of India. इंडिया एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की भाषा है. वी हैव अ डिफरेंट अलग अलग तरह के कल्चर है, अलग अलग प्रथा है. तो ये अलग अलग चीजें हमें कहाँ देखने मिलेगी? ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही देखने मिलेगा. और वी सी डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेजेस. दैट मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस है हर रीजन का. जैसे महाराष्ट्र हैव अ मराठी लैंग्वेज, गुजरात हैविंग अ गुजराती लैंग्वेज. सो दे हैव अ डिफरेंट लैंग्वेजेस, their own identity. You have already studied different geographical regions in Maharashtra. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. So in Maharashtra also we have a different cultural diversity. Differences are there. Now you can see
in this map we have a different dressing style, different you can see there, and you can identify how we have a different looks in our India with a different culture, with a different tradition. Now, next one, people start thinking with a very good, they start feeling proud of their languages. So in India, they start feeling proud of their language, literature, traditions, history of social reforms, educational, cultural movements. तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया में हर तरह के लैंग्वेजेस हैं, लिटरेचर है, अलग अलग तरह की पोएट्स लिखे हैं, अलग अलग पोएम्स है, बहुत सारी कविताएं हैं लिखे गए हैं, ट्रेडिशंस है अलग अलग तरह का। उसके अलावा आप देख सकते हो अलग अलग हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हैं, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले जी थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए उन्होंने वर्कआउट किया। तो ये सब जिन्होंने समाज को बदला है और जिसके अंदर बहुत सारे ज्यादा चेंजेस किए हैं, ये सारी चीजें कहाँ देखने मिलेगी? ये सिर्फ सारी चीजें इंडिया में ही देखने मिलेगी। और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमेशा बरकरार रहे, और इस चीजों को इन लोगों को सारी चीजें, मतलब जैसे जो भी इनको डेवलपमेंट की जरूरत हो, इनकी हर सुविधाएं ये पॉलिटिकल पार्टीज दिलाने की पूरी कोशिश करती है। Now, next one is, you can see in your textbook page number 86, I am reading that, just try to understand that. Okay, regional identity develops from the consciousness about the development of region and the feeling that people belonging to the region should have claim over resources and employment opportunities. See, in regions means region, India के अलग अलग regions में आप देखोगे, for example महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट शिवसेना पार्टी डेवलप करना चाहती है मराठी पीपल्स के लिए, और वो चाहते हैं कि जो जॉब्स है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो पहले सबसे पहले मराठी पीपल्स को मिले। और इस हिसाब से other people who are coming from other regions, they also get the job, but first preference should be the Marathi people. And इसी तरह से वो सारी अपने regions को धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे वो बनाते भी है with the help of getting the power from the government, and they try to improve all the regions in a proper development. Okay. Next one is, when linguistic, regional, cultural, and other identities get connected, regional consciousness emerges as a stronger feeling. So, अगर अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं और उनके हर चीज को कंटिन्यू करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और ये अपने लैंग्वेजेस को बरकरार रखता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं रीजनल पार्टीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज मतलब जो अपने रीजन में एक अलग सी पार्टी बनाई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वी हैव एन पार्टी इन महाराष्ट्र दैट इज शिवसेना, सो दिस इज अ रीजन पार्टी। फॉर एग्जांपल पंजाब हैव अ different party that is called as Akali Dal, which has been already, आपने ये अकाली दल के बारे में पहले से पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री में। okay? तो रीजनल पार्टीज भी हेल्प आउट करती है। तो यू कैन सी हियर, रीजनल पार्टीज का मेन लोगो यही रहता है कि उनको सारे क्या कहते हैं, उन सारे कॉमन पीपल्स के डिमांड्स मिले और वो उनको फुलफिल कर सके। दे हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। Okay, let's start with the changing nature of regional parties in India. You can see here, in India, there are regions. You can see regional parties came into existence in India in the post-independence period. First point, you can see here in the textbook page number 87. First point, it is very important, try to by heart that answer. Initially, regional parties gave rise to the separatist movement. Separatist movement का मतलब होता है कि डिफरेंट कंट्री फॉर्म अलग कंट्री बनाना चाहता था। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पंजाब चाहता था कि वो एक अलग सा इंडिविजुअल कंट्री बनाए, तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। नागालैंड भी चाहता था कि वो एक अलग सी कंट्री बनाए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान, द्रविड़स्तान। आप देख सकते हो खालिस्तान, जो पंजाब चाहता था खालिस्तान, एंड द्रविड़स्तान इज तमिलनाडु पार्ट। ओके,
द्रविडियंस को वो हेल्प आउट करना चाहते थे, वेर मेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन एंड एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट स्टेट. So you can see in this also, Tamil Nadu have a party is Dravida Munitra Kazgan, and Punjab they're having a Shiromani Akali Dal, and Jammu and Kashmir having Jammu and Kashmir National Conference. Okay, तो ये अलग अलग आइडियोलॉजीज में आ रहे थे. उन्होंने ये सोचा था कि हम अलग से कंट्री बनाएंगे. इन्हें वो करने नहीं हुआ, नहीं सेपरेट कंट्री बना पाए वो लोग. रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर हैव मेड सच डिमांड. ये सारे जो आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, ये स्टेट्स ने सामने से डिमांड किया था कि वी नीड अब हम अलग से एक पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें सेपरेट कंट्री बनाने के लिए नहीं दिया गया था. सो उन्होंने मूवमेंट किया था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट. सेपरेटिस्ट का मतलब ये होता है कि सेपरेट मूवमेंट बनाना, हमें सेपरेट कर दीजिए, इंडिया से अलग कर दीजिए. ओके, तो उन्होंने फिर एक अपनी अपनी पार्टीज बना ली. So they made the party like Shiromani Akali Dal like this. Okay. फिर उन्होंने डिमांड्स किया, a regional party gradually changed. Instead of an independent state, they start demanding more autonomy. उन्होंने वो डिसाइड किया कि ठीक है, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है एंड वी नीड ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन्स पावर. उन्हें पावर चाहिए था, मोर पावर. This was the second stage in the development of regional parties. ये वो लोगों ने second stage था उनका develop होने का पार्टी का. And this stage began from 1990. और ये कब start हुआ? It has been started in the year 1990. The regional parties demanded that for the development of a region, people from regions should get power and state and national level. So regional parties demanded that they should get a development of region. The region should be developed. हर region parties यही चाहता है कि उनके region को develop किया जाए और उन्हें वो power दिया जाए ताकि वो more development state level और national level तक कर सकें. So you can see there, for example, Shiv Sena, that is from Maharashtra, and Telugu Desam, etc. Telugu Desam from Andhra Pradesh. Okay. Now the development of regional parties in the northeast. So you can see there in the picture, northeast means in Nagaland, Manipur, and Assam side. Okay. So they were demanding that they should have shows a different trend. They gave up their demand of separatism. इन्होंने भी सामने से डिमांड किया था कि हमें सेपरेट कंट्री बनाना है. ये सब चीजें आपने ऑलरेडी 9th के हिस्ट्री चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, किस तरह से उनको एग्रीमेंट साइन करके एक साथ रखा गया है. ओके, तो आप देख सकते हो, दे वर डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट तो नहीं किया गया, सो वी नीड अ मोर पावर. अगर हमें सेपरेट नहीं किया तो हमारे पार्टीज को मोर पावर की ऑटोनॉमी दीजिए. ऑटोनॉमी मीन्स मोर पावर. ओके, द रीजनल पार्टीज from northeast are now entering in mainstream of national politics. So now they are entering with their help of union and different parties. They are joining and they are developing their regions. Okay, now we can see एकदम deep में अब जाएंगे, how many region parties are there and what objectives are there for regional parties. Okay, next one, sorry, yeah, you can see here first region parties. Some major regional parties are shown below. You can see here, this one is Shiv Sena party. So you can see Shiv Sena have a main political party in Maharashtra and it has been established in 1966. What was the objective? What was the ideology of the Shiv Sena? To protection of the rights of Marathi people. So he was protecting the rights of Marathi people. Promotion of Marathi languages. Promotion of Marathi language means you should speak
Marathi language should be compulsory. So this was there. And resistance of people from other regions. देखो, resistance of people from other regions means दूसरे जगह से जो लोग आते हैं उनको इस जगह पर नहीं आने देना होता है, लेकिन ये पहले था, अब नहीं है. अभी तो अदर रीजन से भी लोग महाराष्ट्र में आके दे आर गेटिंग एजुकेशन एज वेल एज देयर जॉब्स आल्सो. ओके, तो ये अभी नहीं लागू होता है. आगे देखते हैं. In 1995, it entered into a coalition with BJP and came to power in Maharashtra. Coalition, student, I have already explained you coalition क्या होता है. एक दूसरे के साथ मोर पार्टीज मिल के हेल्प लेती है और फिर जीत हासिल करती है पॉलिटिकल पार्टीज में, राइट. तो 1995 में बीजेपी कैसे जीती थी? विद द हेल्प ऑफ, उन्होंने हेल्प लिया था शिवसेना के भी वोट को, और फिर जाके वो पार्टी जीत पाई थी. दैट इज कॉल्ड कोलिएशन गवर्नमेंट. ओके, इट शेयर्स पावर विद द बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014. तो 2014 तक वो पार्टी एक साथ थी. नेक्स्ट वन इज शिरोमणि अकाली दल. दिस इज अ पार्टी ऑफ पंजाब. So you can see there, जिन्होंने पहले डिमांड किया था कि उनको अलग से खालिस्तान बनाना था, जो आपने ऑलरेडी पहले वाले पिक्चर में देख लिया. पाकिस्तान was telling that he need a separatist movement. separatist movement का मतलब ही था कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना था. उन्हें एक अलग से कंट्री, स्टेट नहीं बने हुए इंडिया में नहीं रहना चाहते थे. वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट करके खालिस्तान बनाना चाहते थे, सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे. तो शिरोमणि अकाली दल एक पार्टी बनी जिन्होंने वो एस्टैब्लिश हुई थी 1920, अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब. इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी. और वो सबसे ज्यादा अपने धर्म, अपने रिलीजियस को मानते थे, और वो चाहते थे कि ये जो आइडेंटिटी है, हमारा जो लैंग्वेज है, विच शुड नॉट बी, मतलब गायब नहीं होनी चाहिए, हमेशा बरकरार रहे. पंजाब शुड बी फॉर पंजाबी, लाइक दैट. assumes powers in Punjab for many years. तो ये अकाली दल जो पार्टी है वो काफी साल तक, और अभी भी बहुत है वो पार्टी, assumes power in Punjab for many years. बहुत साल तक उसकी पार्टी जीत हासिल करती रही. Next party is, you can see the logo, the symbol, Jammu and Kashmir National Conference. So you can see, same thing, it has been established, Jammu and Kashmir National Conference, established in 1932. Same, the main objective, उनका भी goal क्या था? To protect the interest of Kashmiri people and protect of autonomous status. वो वही चाहते थे कि कश्मीरी पीपल को पूरी तरह का प्रोटेक्शन मिले, उनका वो जो है स्टेटस विच शुड नॉट बी, वो खत्म नहीं होनी चाहिए. तो हर पार्टी यही चाहती है कि अपने रीजन को बहुत ज्यादा डेवलप करे और उसे बरकरार रहे, उसके ट्रेडिशंस को, कल्चर को, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना आए. नेक्स्ट वन, Assam Gan Parishad. Assam Agreement was signed in 1985. So you can see here, Assam Agreement जो signed हुआ था, कब हुआ था? 1985 में. So resolve the problems of displaced people, protect the unique culture, linguistic and social identity of Assam, economic development of Assam. Same thing. उन्हें भी अपना कोई कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना जो अपना खुद का समाज की एक आइडेंटिटी है कि मैं ये हूँ, आसामी हूँ, ये सब चीजें उनकी कोई किसी से छीने नहीं, इसलिए ये पार्टी बनाई गई. और ये जो रीजनल पार्टी है आसाम गण परिषद, वो उनके पार्टीज को, ये कॉमन पीपल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने की कोशिश करती है, ताकि उनको ज्यादा डेवलपमेंट हो और उनके रीजन में ज्यादा इकोनॉमिक हो. नेक्स्ट वन इज द्रविड़ा मुनित्रा खजगम. तो द्रविड़ा मुनित्रा खजगम जो है, इट्स अ पार्टी ऑफ तमिलनाडु. Now
You can see here Justice Party, a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into Dravida Munitra Kazhagam, a political party. So Dravida Munitram Party, it has been established in the year 1940. No, it was established in the 1972. So you can see here non-Brahmin movement ये हुआ था 1920 को, जिसके वजह से ये द्रविड़ा मुनित्रा खासजन फॉर्म हुआ. ओके, और ये स्पेशली किसको हेल्प आउट कर रहा है? तमिल आइडेंटिटीज को, जैसे जो तमिलियन पीपल्स को है, द्रविडियंस को है, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को और उनके कल्चर और ट्रेडिशंस को. सो दिस द्रविड़ा मुनित्रा कास्टम always supports the Tamil identity. Okay, or next one you can see the next one. In India we have many regional parties in every state. So आप देख सकते हो इंडिया में आपने अलग अलग तरह के रीजनल पार्टीज देखे, अलग अलग स्टेट के, और उनके अलग अलग ही नहीं, मैं बोलूंगी मोस्ट प्रोबेबली द सेम objective was there, same ideology was there to improve their and get the improvement and development in their regions. So you can see in the chart, in the following chart, next is in the table, regional parties in Maharashtra, representation in Vidhan Sabha. So in Vidhan Sabha, regional parties in Maharashtra getting how much seats in which year, we can see in the table. Shiv Sena getting getting seats in the year 2009 44, and in 2014 it is getting 63. That means it has been increased. Now in Vidhan Sabha, Maharashtra Navnirman Sena in the year 2009 getting how much seats? 13 seats, and in election 2014 it is getting 1 seat. Peasants and Workers Parties, वो पार्टी को कितने भी सीट्स मिल रहे हैं 2009 में? That is 4, and in the election year 2014 it is getting 3. Republican Party of India, Bahujan Mahasangh, in year 2009 he is getting 1 seat, and in 2014 it is getting 1 seat. It is equal. Republican Party of India in the year 2009 and 2014 it's not getting any votes, nil. Samajwadi Party getting 4 seats in the year 2009, and in the year 2014 it is getting 1 seat. So you can see there are up and downs, increasing and decreasing in the seats in the year of 2009 and 2014. So next one, regional parties again in the continuation. Bahujan Vikas Agadi in the year 2009 2 seats getting, and in the year 2014 it is getting 3 seats. Rashtriya Samaj Paksh getting 1 seat, and again in the 2014 it is getting 1 seat. Both are equal. All India Majlis-e Ittehadul Muslimin in the year 2009 it is not getting any seat, and election in the year 2014 it is getting 2 seats. Jan Surya Shakti, that is election year in 2009 getting 2 seats, and in the year 2014 it is not getting any seats. Lok Sangram 1 seat in the 2009, and in 2014 nil. Swabhimani Party getting seats in the year 2009 only 1, and 2014 it is getting nil seats, not a single vote, seats gone. Okay, so you can see in this chapter. Okay, in this chapter we have already learned the national parties and the regional parties getting different votes.
एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर, क्या क्या काम उन्होंने किया वो हमने देखा आज। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक बार मैं सिर्फ रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या हुआ है आज का। तो आज हमने सबसे पहला शॉर्टली बता देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी पढ़ा, एंड भारतीय जनता पार्टी मर्ज भारतीय जन संघ की 1951 में, एंड इट गेट मर्ज टू जनता पार्टी इन भारतीय जनसंघ कैसे बन गया भारतीय जनता पार्टी? इसका रीजन था जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ स्प्लिट हो जाते, जनता पार्टी स्प्लिट हो जाती है एंड देन भारतीय जनता पार्टी वो फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी पढ़ा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये सब था हमारा नेशनल पार्टी। नाउ इसके बाद हमने पढ़ा रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टीज में फर्स्ट वन वॉज शिवसेना, सेकेंड वॉज शिरोमणि अकाली दल, थर्ड वॉज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट वन वॉज आसाम गण परिषद, लास्ट वन वॉज द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ। टीचर हेलो, anyone is there? Students, unmute yourself. Hello, Ask your doubts. raise your hands if you have any doubt. Yes, ma'am, you can unmute them. Afreen Sheikh from Tempe. Curly Faces, I think. Students, those who are having doubts, please raise your hands. Afreen, you want to say something? Hello, ma'am. Okay, okay, no, ma'am, no problem. I'll tell them something others, some other point. We have time. Yeah, I have a time. Yeah. Okay, students, let me tell you. I'm all. कल भी मेरा एक लेक्चर है. That time I'm going to teach you how to write the question answers and how to get good marks in political science. तो मैं कल के लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं और किस तरह से लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे. So how to write filling in the blank, how to write match the following. आज भी बच्चों को match the following में अभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि उसमें आपको वो बोलते हैं रीराइट द वो उसका क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, खासकर आपको ट्रू रहेगा तो भी रीजन लिखना है और फॉल्स रहेगा तो भी आपको लिखना रहता है. तो ये जो भी डाउट है वो कल के लेक्चर में मैं जरूर क्लियर करूंगी. तो कल मैं बताने वाली हूँ हाउ टू राइट पॉलिटिकल साइंस एंड हाउ टू स्कोर 12 मार्क्स फुल इन पॉलिटिकल साइंस. ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स जैसे आप देख सकते हो, ब्रीफ आंसर्स मोस्टली लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 वो 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. ऑप्शन रहता है एनी वन लिखने के लिए. तो एट दैट टाइम आपको क्या कहा जाएगा कि वो क्वेश्चन में आपको कितने पॉइंट्स लिखने, 4 पॉइंट्स लिखना है. बट आप उस ब्रीफ आंसर को लिखने के लिए आप अलग अलग पॉइंट्स को सिर्फ एक टेबल की तरह, ट्री डायग्राम की तरह भी बना सकते हो और बाद में उस आंसर को पॉइंट्स में लिख सकते हो. तो उससे भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं. तो अलग अलग तरह के टेक्निक्स में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट,
इसके अलावा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कल के लेक्चर में द सेम टाइमिंग रहेगा 9:50 को। मैं जरूर ये चीज को आपको समझाऊंगी। एक्चुअल में मैं मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग जो बोल रही थी वो हिस्ट्री के लिए है। अगर कल मुझे वक्त अगर मिल जाता है तो मैं जरूर हिस्ट्री का भी बता दूंगी आपको कि किस तरह से हिस्ट्री में मैच द कॉलम लिखता है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन होता है आपको कि क्या कैसे लिखना है। आई डोंट नो अभी तक आपने पेपर वो सॉल्व किया है या नहीं, लेकिन आपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज जरूर देखा होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सब चैप्टर से हमेशा याद रखो, इन हिस्ट्री पेपर पॉलिटिकल साइंस के कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करने का, क्योंकि सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी टॉपिक होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वर्कआउट करता है, कैसे काम करता है लोगों के लिए, वो आपने पढ़ा। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर जो आप पढ़कर समझ सकते हैं। सेकेंड वन, इलेक्टोरल प्रोसेस। आपको तो पता ही है, आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे इलेक्शन में, कौन से पार्टी को वोट देने के लिए कोई बोलता नहीं है, लेकिन आप देखते ही होंगे बड़े जब जाते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेस में भी इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। अगर आप रीड करोगे, उसे समझोगे, तो यू कैन राइट द आंसर बाय योर ओन। आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। एंड द third chapter was political party, and you know very well, I've already taught you that 7 national parties are there, and in that two parties तो एकदम कॉमन है जो आप हमेशा देखते हो उनके सिंबल को। फर्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द भारतीय जनता पार्टी। नाउ इट इज, कौन सा रूलिंग पार्टी है? दैट इज भारतीय जनता पार्टी। एंड which one is opposition party? Indian National Congress. Okay, so you know very well, the opposition party is like a dog watch. Every time he is looking कि वो कोई ना कोई बार बार वो भारतीय जनता पार्टी पे लुकआउट करता ही रहता है कि कुछ कमी निकले। और इंसान, आपने न्यूज में देखा होगा, हमेशा एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसके ऊपर ये पार्टी उसको ब्लेम करती है, वो करती है, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल चैप्टर। अगर समझो किसी ने आपको एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको लोगो दिया जाए, सिंबल दिया जाए, एंड यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। सो यू कैन राइट वेरी वेल कब वो एस्टैब्लिश हुआ और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। आपको वही वर्ड लिखना है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, यही चीज को तो हर पार्टी का गोल था। ओके, तो ये सबसे सिंपल पॉइंट्स है। अब बचे रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टीज, यू नो वेरी वेल व्हाट इज रीजनल पार्टीज। रीजनल का, जैसे आप जिधर रह रहे हो, सबसे पहले तो अपने को वो पार्टी याद रखना है, दैट इज महाराष्ट्र शिवसेना पार्टी। और पंजाब का कौन हो गया? शिरोमणि अकाली दल पार्टी। तो ऐसे कॉमन पार्टीज अपने को याद रखना होता है। तो ये पार्टीज के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो आंसर लिखने आना चाहिए। ओके, उसके अलावा अब नेक्स्ट तुम्हारा 4th चैप्टर भी है इन पॉलिटिकल साइंस, दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये भी कैसा है, कौन सा मूवमेंट हुआ था और उस मूवमेंट से क्या क्या बेनिफिट हुआ, यही आप पढ़ने वाले हो। तो ये जो 4 ही चैप्टर है, आपको एक चैप्टर ऑलरेडी ओमिटेड है, तो आप 4 चैप्टर्स में आप सोच सकते हो कि 12 मार्क्स का होता है, एंड यू कैन स्कोर फुल 12 मार्क्स। सो इट्स वेरी इजी, डोंट स्किप पॉलिटिकल साइंस, कभी नहीं स्किप करने का। ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं लिख सकता या लिख सकती, आप समझोगे तो जरूर लिखोगे। So try to by heart and try to understand कि क्या है इस चैप्टर में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, ये आपको क्यों चैप्टर दिया हुआ है। Because you should know these things are common things जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। ओके मैम, आई थिंक किसी बच्चे ने हाथ उठाया है, तो क्या 2 मिनट 1 मिनट के लिए, हाँ, एक क्वेश्चन। यस, मिस कौन हाँ सा बेटा बोलो, चैप्टर नहीं है? क्या है बेटा, कौन से चैप्टर में क्या? आप फिर से पूछिए, बोलिए यश। यश
आई थिंक आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आई एम ऑडिबल? नहीं सुनाई दे रहा है क्या मैम? चारुशिला मैम? हेलो? Yes, ma'am. I can't hear you, ma'am. Okay, can we stop here? Okay, okay. Thank you. Yash will Thank you clear so the much. doubts in the next. Yeah, bye.